Hello guys, I am Shubham of tutorials. In this video we will be discussing plasma membrane composition. In detail हम composition देखेंगे, right? Previous video में हमने structures and function जो है basic characteristics वो सब discuss किए. तो composition में first of all lipid, okay, lipids ये तो major है. Second carbohydrates and third proteins. Okay, lipids, carbohydrates and proteins होते हैं. अभी इसमें भी टाइप्स हैं. लिपिड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोलिपिड्स. ओके, ये भी मेजर सबसे ज्यादा यही है. देन स्फिंगोलिपिड्स एंड देन स्टीरॉल. ओके, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड स्टीरॉल्स. कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट. एंड प्रोटीन्स में भी देयर आर टाइप्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स जो है वी विल सी वन बाय वन. ओके, और हम पिक्चर से देखेंगे ताकि हमें बहुत इजी समझ आएगा. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट, इसमें ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द स्लाइड ऑफ लिपिड्स. So lipids, phosphoglycerides. Phosphoglycerides means phospholipids ही होते हैं. ओके, phospholipids. इसमें फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल होता है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ग्लिसरॉल, राइट. 2 fatty acid tails. Okay, glycerol and this is a phosphate and यहाँ पे variable portion of head group. Head group is varied which is basically X. So अगर choline है, phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine, okay, then phosphatidyl serine, phosphatidyl inositol. Okay, these are the basic phospholipids or also known as phosphoglycerides, right. अभी यहाँ पे प्लाज्मालोजेन में also this is a same structure, right. So what is difference between phospholipids and plasmalogen? प्लाज्मालोजेन में एक ईस्टर बॉन्ड एंड एक ईथर बॉन्ड. ओके, so this is a ester and this is a ether. In this phospholipids यहाँ पे दोनों जगह ईस्टर बॉन्ड है. ओके, both are ester bonds but here one ester bond and one ether bond. Now the next class is sphingolipids. Sphingolipid में sphingosine molecule attach होता है, right. Sphingosine molecule and the important one sphingolipid is the sphingomyelin. जिसमें जो head group है वो choline ही है on this phosphate. See, this is a phosphate and this is a choline. We can see from the picture here. The third is the sterols. हमें तो पता है sterols में steroid ring होते हैं which is a 4-membered ring and see cholesterol found in animals, fungal में अर्जोस्टेरॉल, plant में stigmasterol, in bacteria that is hopenoids. These are also sterols found in bacterial membrane, right. Now what is difference between these things we will see. एक difference देखेंगे हम.
phospholipid and sphingolipid. Phospholipid में two fatty acid tails are there, right? And इसमें one fatty acid tail. Okay. Sphingosine is an amino alcohol that contains long unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid chain. यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ये जो स्पिंगोसाइन है फैटी एसिड से कैसे अटैच है? बाय दिस अमाइनो ग्रुप. ओके, एंड दिस इज नोन एज सेरामाइड. Sphingosine attached to fatty acid by the amino group is known as ceramide. Okay, we have to remember these terms. और एक स्लाइड है यहाँ पे. See, we can see the structural difference. Phospholipids में एक टेल सैचुरेटेड फैटी एसिड से है एंड एक टेल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके, इसमें डबल बॉन्ड है सेकंड टेल में, राइट? फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो है, this is the phospholipid which carries net negative charge. Okay, we have to remember this. जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है तो उस पे नेट नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ दिस टू ग्रुप्स. ओके, बाकी मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हैं बट फॉस्फेटिडाइल सीरीन कैरीज नेगेटिव चार्ज. अब फॉस्फेटिडाइल कोलिन है यहाँ पे, स्पिंगोमाइलिन. सी, दिस इज द सेम थिंग. So this is the choline. Okay, and this is the sphingosine. See, sphingosine molecule, right? And sphingosine by the bond amide bond. Okay, अभी कोलेस्टेरॉल कैसे होता है? Basically, this is a polar head. B is like a polar OH hydroxyl group, right? And this will be tail, which will be non-polar. See, यहाँ पे लिखा है non-polar hydrocarbon tail and polar head group. And this is a rigid planar steroid ring structure. Got it? This is about sterol. Basically cholesterol in animal cell, animal membrane, right? तो ये जो पोलर है लिपिड हेड के साथ इंटरैक्ट करेगा and tail will interact with the lipid tails. Orientation will be like that only. Now we will talk about carbohydrate part. Carbohydrates in membrane. Carbohydrates में glycolipid and glycoprotein. So glycoprotein is majorly present, right? जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है प्रोटीन के साथ मिलके ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ऑन द मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर ट्रेस. ओके, मींस दिस इज 90%, दिस इज 10%. तो अगेन इसमें भी टाइप्स है. सिंपल शुगर प्रेजेंट है तो सैरिब्रोसाइड, एंड कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है तो गैंग्लियोसाइड बोलते हैं. ओके, लेट्स सी द पिक्चर. गैलेक्टोज सेरेब्रोसाइड सिंपल शुगर है, जस्ट गैलेक्टोज प्रेजेंट है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स
शुगर है, तो दिस इज द GM1 गैंग्लियोसाइड, कॉम्प्लेक्स शुगर, राइट। इसमें सैलिक एसिड होता है, ओके, आई विल राइट देयर कॉम्प्लेक्स शुगर कंटेनिंग सियालिक एसिड, that is ganglioside, okay. So this is slide is about glycolipids. So what we have to remember, यहाँ पे एक नोट करना है हमें, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्पिंगोसाइन है, स्पिंगोलिपिड, राइट। So how this glycolipid is formed? Sphingolipid attached to carbohydrate, carbohydrate, जो स्पिंगोलिपिड है, so this is sphingosine and this is the lipid fatty acid chain, okay, so this is sphingolipid और यहाँ पे गैलेक्टोज है, so this become a glycolipid, right। अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर है, so this will become a ganglioside, यहाँ पे गैलेक्टोज है, तो गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड, सिंपल शुगर, and this is a complex, so this is GM1 ganglioside. The bonds are O-glycosidic bond, O-glycosidic bond. Now these charts are also very important, tables, जिसमें हमें याद रखना है कौन से मेम्ब्रेन में क्या ज्यादा प्रेजेंट है और क्या कम प्रेजेंट है, राइट। तो दी फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है कोलेस्टेरॉल आरबीसी मेम्ब्रेन में, देन फॉस्फेटिडाइल कोलिन प्रेजेंट है और सबसे कम यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स है, उसके बाद फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ओके। सबसे हाईएस्ट एंड सबसे लोएस्ट दैट वी हैव टू नोट, ओके। अगेन माइलिन शीट में सबसे ज्यादा ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, सबसे लीस्ट जो है स्पिंगोमाइलिन, अदर्स, ओके। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन प्रेजेंट है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा फॉस्फेटिडाइल कोलिन, हाईएस्ट अमाउंट। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फॉस्फेटिडाइल कोलिन अगेन, ओके। लाइक दिस वी हैव टू रिमेंबर क्या प्रेजेंट है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। लिवर सेल मेम्ब्रेन में अगेन फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, देन स्पिंगोमाइलिन है, ओके। एक कंपैरेटिव बेसिस पर हमें स्टडी करना है, राइट। दिस इज ऑल्सो सेम चार्ट, यहाँ पे भी सेम दिया है, यू कैन सेव दिस बाय रिमूविंग स्क्रीनशॉट्स। सी ह्यूमन इरेथ्रोसाइट आरबीसी में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, माइलिन ह्यूमन माइलिन शीट ग्लाइकोलिपिड कोलेस्टेरॉल दोनों प्रेजेंट हैं, उसके बाद फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन। बीफ हार्ट, बीफ में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, देन फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन, कार्डियोलिपिन, हार्ट में कार्डियोलिपिन ज्यादा प्रेजेंट होगा। ई कोलाई में अगेन फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन हाईएस्ट, राइट। One more nice picture I have got. See this. एक्सोप्लाज्मिक साइड एंड साइटोसोलिक साइड, मतलब ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो दिस यहाँ पे साइटोसोल एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो साइटोसोल साइड में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन, ओके, एंड फॉस्फेटिडाइल सीरीन, देन कोलेस्टेरॉल, नहीं कोलेस्टेरॉल इक्वल प्रेजेंट है ऑन द बोथ द साइड्स, बैलेंस है कोलेस्टेरॉल का। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड दैट इज एक्सोप्लाज्मिक साइड पर
स्पिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडाइलकोलिन है। ओके, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर। साइटोसोलिक साइड पर serine and ethanolamide, exoplasmic side myelin and choline. Now the last part we will talk about proteins. So proteins में three types. Again, first is integral. Integral मतलब membrane में घुसे हुए proteins है, like this, right? Second is peripheral. Peripheral means suppose this is a membrane, तो यहाँ पे interact करेंगे on the side. Third type is lipid anchored. Lipid anchored proteins. मतलब यहाँ पे लिपिड होगा एंड यहाँ पे ऐसे प्रोटीन लिंक होगी। ओके, so we will see with the picture. So this is the integral. First picture, यहाँ पे प्रोटीन इंटरैक्ट है, अल्फा हेलिक्स. Now this first one is single pass. सिंगल पास मतलब सिंगल ऐसे पास होगा, सिंगल एक ही पास करेगा, राइट. एंड जो एक क्लस्टर में है दैट इज कॉल्ड मल्टी पास. मल्टी पास, राइट. See these are the 1, 2 and 3. 3 helices are passed. ओके, इसे हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिकॉज दिस आर एंटायरली ट्रांसफर्ड इन द मेम्ब्रेन, राइट. जो सेकेंड टाइप है पेरिफेरल, दिस आर अटैच ऑन द साइड्स. ओके, डायरेक्ट, इसे हम डायरेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट अटैचमेंट किया है, एंड दिस इज इनडायरेक्ट. So these are direct one and this is indirect one. Okay, indirect attachment. तो बेसिकली इसमें इंटीग्रल एंड पेरिफेरल में नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं. सी लिपिड एंकर्ड में बेसिकली जीपीआई एंकर्ड हम बोलते हैं, ओके, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट मोटिव होते हैं. ग्लाइकोसाइल, राइट. ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिथॉल एंकर्ड प्रोटीन, सो उस पे प्रोटीन अटैच्ड है. सी दिस इज अ लिपिड, दिस इज अ शुगर. ओके, मतलब इनोसिथॉल रिंग, इनोसिथॉल पर कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट के ऊपर प्रोटीन, राइट. सो दिस इज बेसिकली कोवैलेंट, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड है. वन मोर पिक्चर इज देयर. So this is an integral. All these are integral proteins. These are alpha helices. This is beta barrel arrangement. बीटा बैरल पोर फॉर्मिंग होता है, पोर फॉर्मिंग. ओके, इसके एग्जांपल्स भी हमें देखने हैं. वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस. इसमें हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं. ये पेरिफेरल प्रोटीन है, दिस आर इंटीग्रल एज आई सेड. ओके, ये भी पेरिफेरल है, दिस इज फ्रॉम द साइटोसोलिक साइड एंड ये एक्स्ट्रासोलिक, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर है, एंड दिस इज लिपिड एंकर्ड. ओके, जीपीआई एंकर्ड बेसिकली वी कैन से. जो लिपिड एंकर्ड है दैट वी हैव टू स्टडी मोड. ओके, लिपिड एंकर, आई विल राइट हियर जीपीआई anchored proteins. Okay,
टू थिंग्स अभी यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीनाइलेशन एंड असाइलेशन। असाइलेशन में माइरिस्टाइलेशन एंड पाल्मिटॉइलेशन। माइरिस्टाइलेशन में मेरिस्टिक एसिड, पाल्मिटॉइलेशन में पाल्मिटिक एसिड। Okay, this is a 14 carbon, this is a 16 carbon, right? प्रीनाइलेशन में आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, उसमें भी टू टाइप्स है, फार्नेसाइल एंड जेरेनाइल जेरेनाइल। Farnesyl is a 15 carbon compound and geranal geranal is a 20 carbon compound. Okay, ये तो बेसिक है। अभी हम डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। सीयर मेरिस्टॉइल जो एंकर है मेरिस्टिक एसिड से, दैट इज बेसिकली अमाइड लिंकेज। ओके, अमाइड लिंकेज होता है टू द ग्लाइसिन, राइट? यहाँ पे दिया नहीं है अमाइनो ग्रुप, टर्मिनल अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन एंड मेरिस्टिक एसिड। ओके, एंड पाल्मिटॉइल जो एंकर है पाल्मिटिक एसिड, वहाँ पे थायो ईस्टर लिंकेज, थायो ईस्टर लिंकेज बिटवीन सिस्टीन एंड पाल्मिटिक ग्रुप। यहाँ पे भी सेम थायो ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज बिटवीन सिस्टीन एंड प्रीनाइल ग्रुप। ओके, वी विल राइट देयर। यहाँ पे अमाइड, यहाँ पे थायो ईस्टर एंड यहाँ पे थायो ईथर, बोथ द थिंग्स, दोनों में थायो ईथर। बट इट प्रीनाइलेशन के लिए कैक्स मोटिव एक इम्पोर्टेंट है, कैक्स मोटिव। Okay, C is cysteine, A will be aliphatic amino acid, and X changes. X will be leucine in the case of geranil geranil, and farnesyl के केस में X will be alanine, methionine, serine, and glutamine. Okay, X motif. Basically, this is a post-translational modification. One more thing of these glycolipids are we get most of the glycolipids extracellular side only, right? जो sugar होते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर साइड ओनली। सी यहाँ पे एक अल्फा हेलिक्स है, हाउ इट इंटरैक्ट्स, दिस आर द लिपिड बाइलेयर्स। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, सी दिस ग्रीन कलर, ऑल आर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। ये लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरैक्ट करके अंदर व्हाट वी कैन से स्पैन करते हैं, एंड दिस आर पोलर वन which interact with the head groups, right? This is example of a again protein carbohydrate, right? तो यहाँ पे इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे इंट्रा चेन है, मतलब सेम चेन में, विद इन द सेम चेन हो तो इंट्रा चेन एंड डिफरेंट चेन्स में हो तो इंटरचेन। दिस आर द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स, राइट? एंड दिस आर द अल्फा हेलिसेस, सी जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग है, ट्रांस मेम्ब्रेन। एंड जो साइटोसोलिक साइड पर है वहाँ पे बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकता। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट, दिस वी हैव टू रिमेंबर। रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट के कारण यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होता ऑन द साइटोसोलिक साइड। वन मोर पिक्चर इज हियर, सी दिस इज आल्सो अ ग्लाइकोलिपिड टाइप एग्जांपल है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटोग्लाइकन, अब एडजॉर्ब ग्लाइकोप्रोटीन है यहाँ पे,
Then transmembrane glycoprotein, जो membrane integral protein से link है, glycoprotein. These are the sugar residues, right? So this was all about the composition, and that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.